آج ہم بات کریں گے اس لمحے کی جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور پھر پہلی رات سے لے کر 40 دن تک اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو کوئی کہانی نہیں، یہ کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، یہ ہدایت کے لیے ہے۔ اگر آج تم نے یہ بات سمجھ لی تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ آخری بات وہ ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب وہ سانس جو امانت تھی واپس لے لی جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو منظر بنتا ہے وہ خاموشی کا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی جس میں گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، وہ خاموشی جس میں زبانیں بند اور آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور وہ خاموشی جس میں انسان خود کچھ کہہ نہیں پاتا۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے مگر روح بے خبر نہیں ہوتی۔ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، کندھوں پر رکھا ہوا وہ جسم جو کل تک خود چلتا تھا آج دوسروں کے سہارے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ روح یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کون ساتھ آیا، کون چند قدم چل کر واپس مڑ گیا، اور کون صرف فرض پورا کر کے الگ ہو گیا۔ قبرستان کا راستہ لمبا نہیں ہوتا، مگر اس دن ہر قدم بھاری لگتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اوپر کھڑے لوگ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور نیچے وہ انسان جس نے ساری عمر روشنی میں گزاری اب اندھیرے کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ قبر بند ہوتی ہے، قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک ایسی تنہائی شروع ہوتی ہے جو دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ پہلی رات ہے۔ یہ رات اس لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ یہاں نہ کوئی عہدہ کام آتا ہے، نہ دولت، نہ تعریفیں، نہ سوشل حیثیت۔ یہاں صرف دو چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، ایک انسان کے اعمال اور دوسری اس کا یقین۔ جسم اور روح کا تعلق اب ویسا نہیں رہتا جیسا دنیا میں تھا۔ یہ ایک نیا تعلق ہے جس میں روح زیادہ باخبر ہے اور جسم زیادہ بے بس۔ زمین کا پہلا احساس انسان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ جس مٹی پر وہ چلتا رہا آج وہی مٹی اس کے اوپر ہے۔ اندھیرا صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ اندھیرا دل تک اترتا ہے۔ خاموشی صرف آوازوں کی نہیں ہوتی، یہ خاموشی انسان کے اندر تک بولتی ہے۔ پہلی رات میں انسان کو اپنی پوری زندگی ایک ایک منظر کی صورت میں یاد آتی ہے۔ کہاں غرور کیا، کہاں حق دبایا، کہاں اللہ کو پیچھے رکھا اور کہاں دنیا کو آگے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اصل نقصان کہاں ہوا۔ دنیا میں وہ راتیں جنہیں انسان نے غفلت میں گزار دیا، آج ان سب کا وزن ایک ہی رات میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ رات اس لیے بھی سخت ہوتی ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اب واپسی نہیں، نہ توبہ کے لیے مہلت، نہ اصلاح کا وقت، نہ کسی سے معافی مانگنے کا موقع، صرف انتظار۔ انتظار اس بات کا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کو یہ سکھا دیتی ہے کہ اصل تیاری کس چیز کی تھی اور وہ کس چیز میں لگا رہا۔ یہاں آنسو کام نہیں آتے، یہاں صرف وہ عمل کام آتا ہے جو انسان اکیلا کرتے ہوئے کرتا رہا۔ اور جب یہ پہلی رات گزرتی ہے، جب انسان اس نئے وجود کو قبول کرنے لگتا ہے، تو روح ایک اور مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ایسا مرحلہ جہاں اصل امتحان ابھی مکمل نہیں ہوتا بلکہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اصل امتحان تو اب آنا باقی ہے۔ جب پہلی رات کی خاموشی کچھ مانوس ہونے لگتی ہے، جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب یہی اس کی دنیا ہے، تو قبر کے اندر ایک اور مرحلہ آتا ہے۔ یہ مرحلہ خوف کا نہیں، سچ کا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں انسان سے وہ سوال کیے جاتے ہیں جن کے جواب وہ پوری زندگی دیتا رہا تھا، مگر زبان سے نہیں، عمل سے۔ یہ سوال اچانک نہیں ہوتے، یہ شور مچانے نہیں آتے، یہ چیخ کر نہیں پوچھے جاتے۔ یہ سوال ایسے آتے ہیں جیسے کسی کو اس کی اصل پہچان یاد دلائی جا رہی ہو۔ قبر میں پہلا امتحان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اب نہ باتوں کا وقت ہے، نہ تعویلات کا، اب صرف سچ ہے۔ یہاں وہ علم کام نہیں آتا جو صرف زبان تک محدود رہا۔ یہاں وہ یادداشت فائدہ نہیں دیتی جو نمائش کے لیے تھی۔
यह सिर्फ वो यकीन बोलता है जो दिल में रचा बसा हो। दुनिया में इंसान ने कितनी दफा सच को अपने फायदे के मुताबिक बदला, कितनी दफा हक जानते हुए खामोश रहा, कितनी दफा अल्लाह को याद तो किया मगर माना नहीं। कब्र में यही सब चीजें इंसान के सामने आ खड़ी होती हैं। यहां दुनिया का गुरूर बिल्कुल बेवजन हो जाता है। वो ओहदे जिन पर इंसान अकड़ता रहा, वो नाम जिन पर लोग खड़े होकर सलाम करते थे, वो ताकत जिस पर फैसला सुनाया जाता था, कब्र में एक सवाल के बराबर भी नहीं रहते। यहां ना कोई सिफारिश होती है, ना कोई हवाला, ना कोई दूसरा मौका। यहां इंसान को अपनी पूरी जिंदगी एक आईने की तरह दिखाई जाती है। फर्क सिर्फ यह होता है कि इस आईने में कोई झूठ नहीं होता। वो इल्म जिस पर इंसान फख्र करता था, अगर उसने दिल को नहीं बदला तो वो इल्म बोझ बन जाता है। और वो थोड़ा सा अमल जो इंसान ने खालिस नीयत से किया था, वही उसके लिए रोशनी बन जाता है। यहां इंसान समझता है कि असल कामयाबी ज्यादा जानने में नहीं थी, बल्कि ज्यादा मानने में थी। कब्र के इस पहले इम्तिहान में इंसान को यह भी दिखाया जाता है कि उसके आमाल अब उससे अलग नहीं हैं। अच्छे आमाल दोस्त बनकर साथ होते हैं और बुरे आमाल साया बनकर पीछे लग जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब इंसान चाहता है कि काश एक सजदा और मिल जाता, काश एक आंसू और बहा लेता, काश एक बार दिल से अल्लाह को मान लेता। मगर यहां काश की कोई कीमत नहीं होती। यहां सिर्फ ये देखा जाता है कि इंसान ने दुनिया में अकेले होते हुए किया चुना। लोगों के सामने नेकी आसान थी, मगर तन्हाई में क्या किया गया वही असल फैसला बन जाता है। ये इम्तिहान किसी को चौंकाता नहीं, ये बस हकीकत बताता है, और यही हकीकत सबसे ज्यादा भारी होती है। कब्र में इंसान पहली दफा ये बात पूरी तरह समझता है कि दुनिया में जो कुछ भी था वो सब आर्जी था, और जो नजरअंदाज किया गया वही असल था। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो बात यहां समझ आती है वो जिंदगी में कभी पूरी तरह समझ नहीं आती। और जब ये पहला इम्तिहान मुकम्मल हो जाता है, जब इंसान अपनी हकीकत को पहचान लेता है, तो रूह को एक और मरहले की झलक दिखाई जाती है। एक ऐसा मरहला जो इस बात का इशारा होता है कि आगे का सफर कैसा होने वाला है, क्योंकि इम्तिहान के बाद रूह को उसका नया मकान दिखाया जाता है। जब पहला इम्तिहान गुजर जाता है, जब सच अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आ चुका होता है, तो रूह एक ऐसे मरहले में दाखिल होती है जहां सबसे बड़ी तब्दीली वक्त की होती है। यहां दिन और रात वैसे नहीं होते जैसे दुनिया में थे, न सूरज के निकलने का इंतजार, न रात के गुजरने की घड़ी। यहां वक्त महसूस तो होता है, मगर नापा नहीं जा सकता। रूह को यूं लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया हो और फिर अचानक बहुत तेज चलने लगा हो। दुनिया में जिन लम्हों को इंसान ने मामूली समझकर गुजार दिया, यहां वही लम्हे बहुत भारी बनकर सामने आते हैं। पहले 10 दिन रूह के लिए समझने के दिन होते हैं, समझने के कि अब वो दुनिया का हिस्सा नहीं रही और ना ही अभी आखिरत का मुकम्मल फैसला सामने आया है। ये एक दरमियानी कैफियत होती है। इसी दौरान रूह को सबसे पहला शदीद एहसास ताल्लुक के टूटने का होता है। वो घर जिसके लिए इंसान ने सारी उम्र मेहनत की, वो लोग जिनके लिए उसने खुद को भुला दिया, वो नाम जिसे सुनकर वो चूक जाता था, अब सब कुछ दूर होता चला जाता है। कोई आवाज नहीं आती, कोई पुकार नहीं पहुंचती। रूह देखती है कि जिंदगी आगे बढ़ रही है, वही घर, वही लोग, वही दिन रात, मगर उसके बगैर। यही वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि दुनिया में उसकी हैसियत कितनी आर्जी थी। पहले 10 दिनों में रूह को अपनी पूरी जिंदगी पीछे से देखने का मौका मिलता है। यह देखना फख्र के लिए नहीं होता, यह देखना सच के लिए होता है। कहां इंसान ने दिल को नजरअंदाज किया, कहां अल्लाह की बात सुनी मगर टाल दी, कहां नेकी आसान थी मगर छोड़ दी, और कहां गुनाह मुश्किल था मगर चुन लिया। ये सब मनाजिर किसी फिल्म की तरह नहीं आते, ये सब एहसास बनकर उतरते हैं। कुछ चीजें रूह को अंदर से सुकून देती हैं। वो नेकियां जो खामोशी से की गई थीं, वो दुआएं जो किसी ने बगैर बताए मांगी थीं, वो खैर जो किसी की आंखों में खुशी बनकर उतरी थीं, ये सब रूह के लिए हल्की सी रोशनी बन जाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोझ बन जाती हैं।
वो जुल्म जिसे मामूली समझा गया था, वो हक जो जानते हुए दबाया गया था, वो तकब्बुर जिसे कामयाबी समझा गया था, ये सब अब रूह के साथ रहते हैं। यहां इंसान समझता है कि असल वजन गुनाह का नहीं बल्कि गफलत का था। पहले 10 दिन रूह को यह भी सिखाते हैं कि दुनिया में लोगों की राय कितनी बेमानी थी। वो तारीफ जिसके लिए इंसान ने उसूल तोड़े, वो तनकीद जिसके डर से सच छुपाया, ये सब यहां कोई हैसियत नहीं रखते। यहां सिर्फ यह देखा जाता है कि इंसान अल्लाह के सामने कैसा था। रूह आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करने लगती है कि अब वो मौका जो जिंदगी कहलाता था खत्म हो चुका है। ये कबूलियत एक दिन में नहीं आती, ये पहले 10 दिनों में धीरे धीरे दिल पर उतरती है। और यही वो वक्त होता है जब रूह सबसे ज्यादा तन्हा महसूस करती है, क्योंकि न वो दुनिया में वापस जा सकती है, ना भी उसे अंजाम की पूरी खबर होती है। ये तन्हाई शोर वाली नहीं होती, ये तन्हाई अंदर ही अंदर बोलती है। रूह समझने लगती है कि असल तैयारी आगे की नहीं, पीछे की होनी थी। और जब ये पहले दिन गुजरने लगते हैं, जब रूह इस नए वजूद को पहचानने लगती है, तो उसे यह एहसास होता है कि यह तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि असली तन्हाई अभी बाकी होती है। और जब पहले दिन गुजर जाते हैं, तो रूह एक और ज्यादा गहरी हकीकत को पहचानने लगती है। जब 10 दिन गुजर जाते हैं, जब रूह उस इब्तदाई सदमे से निकल आती है, तो वो एक ऐसे मरहले में दाखिल होती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये कोई नई दुनिया नहीं और ना ही वो दुनिया है जिसका वादा आखिरत के नाम से किया गया है। ये दरमियानी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जहां रूह मुकम्मल बेखबर भी नहीं होती और मुकम्मल बाखबर भी नहीं। यहां रूह को अपने अंजाम का अंदाजा होने लगता है, मगर फैसला अभी सुनाया नहीं जाता। ये वो वक्त होता है जब इंसान अंदर ही अंदर समझने लगता है कि उसने जो बोया था अब वही उग रहा है। आलम बरज़ख में दुनिया की तरह दौड़ धूप नहीं होती, मगर इंतजार बहुत होता है। ये इंतजार किसी खबर का नहीं, ये इंतजार अपनी ही हकीकत का होता है। 10 से 40 दिन तक रूह आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करने लगती है कि उसके आमाल अब उससे अलग नहीं हो सकते। यहां कोई अमल नया शामिल नहीं होता और कोई अमल हज़फ नहीं होता। जो साथ आया वो साथ रहता है, जो पीछे रह गया वो वापस नहीं आता। इसी दौरान रूह को यह भी अंदाजा होने लगता है कि किस चीज ने उसे सुकून दिया और किस चीज ने उसे थका दिया। वो लोग जिन्होंने दुनिया में खामोश नेकियां की थीं, जिन्होंने दिखावे के बगैर अल्लाह को याद रखा था, उनके लिए यह मरहला निस्बतन हल्का होता है। उनके दिल में खौफ कम और उम्मीद ज्यादा होती है। और वो लोग जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया था, जिनके फैसलों में अल्लाह पीछे रह गया था, उनके लिए यह वक्त बोझल होता चला जाता है। यहां कोई सजा फौरी नहीं मिलती, मगर एहसास बहुत गहरा होता है। यह एहसास कि अब वक्त नहीं रहा और जो होना था वो हो चुका। इसी मरहले में लोगों के जहन में एक सवाल आता है, क्या जिंदा लोगों की दुआ यहां कुछ असर रखती है? सच ये है कि दुआ, सदका और खैर का असर होता है, मगर वैसा नहीं जैसा लोग समझ लेते हैं। ये असर किसी का मुकद्दर बदलने के लिए नहीं, बल्कि रहमत के दरवाजे खुले रखने के लिए होता है। अगर किसी इंसान की बुनियाद ठीक हो, अगर उसकी नीयत में सच्चाई रही हो, तो जिंदा लोगों की दुआ उसके लिए राहत बन सकती है। और अगर बुनियाद ही कमजोर हो, अगर पूरी जिंदगी गफलत में गुजरी हो, तो दुआ बस एक सहारा बनकर रह जाती है, रास्ता नहीं बदलती। यही वो मकाम है जहां रूह दुनिया के बड़े धोखों में से एक समझ लेती है कि सिर्फ लोगों की उम्मीद पर जिंदगी गुजारना कितनी बड़ी गलती थी। यहां इंसान समझता है कि असल सहारा लोग नहीं थे, बल्कि वो अमल था जो तन्हाई में किया गया था। आलम बरज़ख में रूह को यह भी एहसास होता है कि दुनिया में जिन चीजों पर वक्त जाया किया गया वो कितनी मामूली थी, और जिन बातों को कल के लिए छोड़ दिया गया वो कितनी जरूरी थी। यह मरहला इंसान को खामोशी से सिखाता है, बगैर डांट के, बगैर शोर के, बगैर ऐलान के। और यही सीख सबसे गहरी होती है। 10 से 40 दिन के दरमियान रूह आहिस्ता आहिस्ता यह कबूल कर लेती है कि अब उसकी दुनिया पीछे रह गई है। अब सवाल यह नहीं रहता कि लोग क्या कर रहे हैं, अब सवाल यह होता है कि मैंने क्या कर लिया था। यही वो मकाम है जहां रूह एक ऐसी बात समझ लेती है
जो जिंदा इंसान शाज़ व नादिर ही समझ पाता है कि जिंदगी लंबी होने के लिए नहीं बल्कि ठीक होने के लिए दी गई थी। और जब ये समझ आ जाती है तो रूह एक नए इंतजार में दाखिल हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि रूह पर क्या गुजर रही है, बल्कि असल सवाल ये बन जाता है कि हम पर अब क्या गुजरने वाली है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये बात याद रखना, तुम्हें अभी मौका मिला हुआ है। ये सब जो तुमने सुना, ये किसी के गुजरे हुए कल की कहानी नहीं, ये तुम्हारे आने वाले कल की खबर है। जो लोग कब्र में हैं वो अब कुछ बदल नहीं सकते, मगर तुम बदल सकते हो, और यही सबसे बड़ी नेमत है। जिंदगी को बदलने के लिए कोई लंबा रास्ता नहीं होता, कोई मुश्किल फलसफा नहीं होता। जिंदगी बदलने का आगाज बस एक सच्चे फैसले से होता है। ये फैसला कि अब जो वक्त मिला है वो गफलत में नहीं गुजारा जाएगा। ये फैसला कि अल्लाह को कामों की फहरिस्त में नहीं, जिंदगी के मरकज में रखा जाएगा। ये फैसला कि नेकी को कल पर नहीं छोड़ा जाएगा और गुनाह को छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं कि सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि हर दिन ठीक होने का मौका है। दुनिया और आखिरत एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। दुनिया को छोड़कर आखिरत नहीं मिलती और आखिरत को भलाकर दुनिया भी नहीं बचती। असल कामयाबी यह है कि दुनिया में रहते हुए दिल आखिरत के लिए तैयार हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा काम, तुम्हारी जिम्मेदारियां, ये सब इबादत बन सकती हैं अगर नीयत ठीक हो, और तुम्हारी इबादत बोझ नहीं बनती अगर उसमें दिखावा ना हो। मौत का खौफ इसलिए डरावना लगता है क्योंकि हमने तैयारी नहीं की होती। जिसने तैयारी कर ली हो उसके लिए मौत इख्तिताम नहीं बल्कि मुलाकात होती है।